सेट्स कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप. वार्म अप हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे. सो उसके लिए यू कैन जस्ट डू द नेक वार्म अप फर्स्ट. और उसके लिए अपने चिन को नीचे और ऊपर लेकर जाइए एंड रिलीज द टेंशन इन योर नेक वेरी स्लोली. 3 to 4 or even 5 rounds is fine. And then left to right. So अपने ईयर को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश कीजिए. ईयर टू शोल्डर्स. इसमें कंधे को ऊपर नहीं लाना है, ईयर को नीचे लेकर जाइए. And feel that your neck muscles are getting warmed up. At the same time tension release हो रहा है. Now the shoulder warm up. So backward motion में full motion दीजिए. Backward motion, full motion. You can do this 7 times. And then forward 1, 2, 3, 4, 5. 2 more. And relax. Let's do the wrist warm up. Wrist का हम काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं. So feel your wrist warming up. And do the reverse. Keep a smile on your face while doing exercise. Awesome. And then do the hip rotation, hip circle, full motion. So just be in comfort. जितना आप कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे कीजिए. And opposite, anti-clock. आपके एब्स भी एंगेज हो रहे हैं इसमें. And relax. Now what you can do is you can just stretch your hamstring and then quadricep at the same time. आप चाहे तो साइड में सोफा का या तो चेयर का सपोर्ट लीजिए एंड डायनामिकली इसे स्ट्रेच कीजिए. हम पूरा दिन क्योंकि बैठे रहते हैं तो ये मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं क्वाड्रिसेप एंड हैमस्ट्रिंग. सो 3 बार आप कर सकते हैं बोथ द लेग्स. कीप अ सपोर्ट. अगर आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं कीप अ सपोर्ट. फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग एंड नाउ इन द क्वाड्रिसेप, योर थाइस. लास्ट टाइम. एंड द लास्ट वार्म अप which is ankle. So simply circle में घुमाना है उसे. Very easy. And then anti clock. उसे बता दीजिए कि हम रेडी है वर्कआउट करने के लिए. Other leg. Beautiful. धीरे 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 आपका बॉडी मानो खुल रहा हो. Opening up for the exercise. ऐसा फील कीजिए. Awesome. Let's start with our first exercise. Warm up is over and the first exercise is simple jumping jacks. So what you're going to do is 1, 2, 3. Let's do 30. All right, keep going. Let's do 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 more guys. 3, 4, 5, 10 more. All right, awesome. Next exercise which is inchworm. So what you're going to do is आपके पास अगर मैट है उसके एज पर आ जाइए. गो डाउन, वॉक 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 वॉक. प्लैंक की पोजीशन में आ जाइए. कम बैक and stand. One more. Go down. Come back and stand. Keep going.
Keep going. Keep going. 3. Let's do 10. 4. 6 more. ऊपर आए तब बिल्कुल सीधे हो जाइए. 5. Stand straight. Go down. 6. 4 more, guys. Come on, you can do this. Easy. 3 more. 2 more. And the last one. And come up. Next exercise, number 3 exercise, that is shuffle and touch the ground. So let's go. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 10 each side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one. And relax. Amazing, guys. How is it feeling? Let's do the next exercise, which is mountain climbers. Take a deep breath. Take a deep breath. Let's do mountain climbers. Plank position में आ जाइए and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 more. 19, 20, and you can relax. Beautiful. Already you have done 4 exercises. Next one is slow burpees. Slow burpees, you can just do 15. If not, just do 10. All right? So, mat के आगे आ जाइए. Up, down, दोनों legs पीछे, दोनों legs आगे, and up. Come on, let's do 10 at least. This is slow, this is not fast, so you're not jumping. If you want, you can jump. So you can jump back, you can jump forward and up. 5, 6, 7, 8, 9, and last one. Awesome, wonderful. Next one, and that is reach and crunch. So one side, अपने feet को almost 45 से थोड़ा सा tilt कर सकते हैं. 45 भी चलेगा. And then you can turn to your side a little bit and reach and crunch, crunch, crunch. Try 15 each side. 5, 6, 7, 9, 10. 5 more. 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4. Come on. Reach and crunch. 5 more. Reach and crunch. Last one. Amazing, guys. Beautiful. Next one, and that is plank ही करेंगे, but then you have to come up and down in plank. So in this position, 1, 2, just do 10, 3, 4, 5 more. You can do this. Come on.
Last one. And you can relax. Whew. Let me know in the comment, how are you feeling at this moment? Beautiful. Next one, and that is alternate knee and elbow touch. So come to the plank position and then put your heels down. All fours में आ जाइए. Alternate hand and leg raise and then crunch. 1. Find your balance. 2, 3, 4, 5. Let's do 10. And last one. Beautiful. Other side. Come on, you can do this. Other side. 2, 3, 5. Last one. And relax. Good. Very nice. The next one, 8th exercise that we have done. The 9th one, last 2 left. That is Superman. Superman. So, उल्टे लेट जाइए आपके मैट के ऊपर. For the back, we are going to do this exercise. So what you have to do is, दोनों हाथ को आगे रखते हुए हाथ को भी ऊपर लेकर आना है और पैर को भी ऊपर लेकर आना है. Like this. 1, down. 2, and down. Do 10. Feel your back muscles working. Hold for a second and down, then down. Come on. Last one. And relax. Okay, now comes the last one, and that is you're going to lie down on your mat like this, on your elbow. Okay, और नीचे के leg को bend कर दीजिए 90 degree angle and in this. So exactly आपके एक knee के नीचे दूसरा knee होगा and 90 degree angle आपको bend करना है. Keep your hands here or here, जो भी आपको comfortable लगे, and leg raise. 2, 3, 4, 10 each side. दोनों leg पर करना है at least 10. And relax. Other side. Rest on your elbow. Bend your knees and go 1, 2, 3, 4, 5. This is very easy. 6, 7. Feel your outer thigh. You can do more of these, no problem. And relax. Let's take a break of 1 minute. If you feel like you can just drink some water, 1 या 2 sip लीजिए, ज़्यादा नहीं. Just take a break of 1 minute. Only 1 minute. And then हाथ को पीछे लेकर जाइए. Look up. अपने बैक को bend कीजिए. Chest stretch. And then hug yourself, round your back. One more time. Hug yourself, other side. 2 more. Hug yourself. And hug yourself. And relax. Let's do some shoulder stretch. Hold for 10 seconds. Other side, hold for 10 seconds. Keep breathing deep. Feel the blood flow, the energy moving in your body from your head to the toes. Relax. Tricep stretch. इसे stretch कीजिए. Close your eyes. Feel the stretch. Other side. Breathe out from your mouth if you need. तो ज़्यादा relaxation का feeling होगा आपको. And then
रिलैक्स. नाउ अपने लेग को बटरफ्लाई पोज में लेकर आइए. And just feel the stretch. Amazing stretch. Beautiful. Keep breathing deep. Keep breathing deep. Let's come to Baddha Konasana, the last pose, and that is. ऐसे ही रखते हुए you can slowly go down, down. And slowly, whenever you are ready, you can come back and you can stand up slowly, very slowly. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. तो आई होप सब लोग एक्साइटेड हैं और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे सारे मेंटर्स, तिलक सर को, आंटी को देख पा रहे हैं, पीयूष भाभी, सब लोगों को देख पा रहे हैं हम यहाँ पे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं फॉरेन ट्रिप के लिए. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Good bhai. Good morning. morning. Good morning. Good morning, Tilak sir. Good morning. Tilak Free sir. entirely good morning. Yes. सर अभी तक बोर्डिंग नहीं हुई आपकी? बस अभी जस्ट होने ही वाली है 10 मिनट के अंदर अंदर. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया. शुभकामनाएं आपको. सेफ जर्नी. Best of journey. Thank you. Thank you. Thank you. सेशन को आगे बढ़ाते हैं. बिल्कुल बात करेंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग की. कल के दिन में क्या जादुई घटना घटी आप शेयर कर सकते हैं. कोई भी शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस. आज और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग है शेयर करने के लिए, तो वी विल जस्ट इंटरप्ट. हियर इज अवर डायमंड लीडर विवेक भैया, है ना? हेलो भैया. हेलो सीमा. हेलो सीमा. बहुत ही अच्छी होस्टिंग करती हैं. टीम. हाँ, नेक्स्ट टाइम से सीमा और मनीष 101% साथ होंगे. बिल्कुल भैया, हम सब आप लोगों के साथ होंगे नेक्स्ट टाइम से. डन डील है. बहुत ज्यादा मजा आता है. ये इतना अमेजिंग होता है ना, इसकी बात ही कुछ और है. फिर तो देख रही है कि इनके कैमराज ऑन है मोबाइल. कल मैं तो लगभग रोज अटेंड करता हूँ मॉर्निंग सेशन. बहुत ही शानदार होता है. महागुरु भी बैठे हैं पास ही. महागुरु से मिलवाया है और आज जो है वो क्या है, जेंडर गुरु का गुरुवान. क्या है, फीमेल जेंडर गुरु जी का फीमेल जेंडर जो है हमारी फीमेल गुरु जी की है. गुरुमा जो है मैसेज, गुरुमा से आज आप मैसेज लीजिए, है ना? नमस्कार. बहुत शानदार ट्रिप है और अगले साल सब साथ में चलेंगे तो और मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. हम सब लोग अभी भी आपके साथ ही जा रहे हैं भैया. हमारा मन एक ना आप लोगों के साथ ही है. इवन पूरे रात में बिल्कुल जब मैं सो रही थी तो मैं पूरा जो है सीन जो है वो दिमाग में चल रहा था कि अभी पैकिंग हो गई, अब हम चल रहे हैं. पूरा चल रहा था वो. तो अब हमारा एक मन आप लोगों के साथ ही जा रहा है. तो जैसे जैसे फोटोज आप भेज रहे हो तो हमें लग रहा है कि हम आप लोगों के साथ ही हैं, वहीं पे ही प्रेजेंट है. बिल्कुल. बस ये साथ में अगर अंदर वो क्या बोलते हैं अवचेतन में उतर गया ना तो सब हो जाएगा काम. बस चलिए सेशन को आगे बढ़ाइए प्लीज. कैरी ऑन. थैंक यू भाभी. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सपीरियंस शेयरिंग की. कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल बताएं. मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी. कल हम लोग भैया भाभी के यहाँ थे और हमने बिल्कुल उसको फील किया जैसे तिलक सर बोल रहे हैं ना, अवचेतन मन में चला गया. बस वो इसी तरह से हमारे अवचेतन मन में चला गया
कि पूरा हमने फील किया उनकी एंटालिया ट्रिप को, और बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम से मिले बहुत मजा आया। और भी कोई शेयर करना चाह रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। मैंने रात को 11:45 बजे पिक्चर देखी थी ग्रुप में। मतलब ऐसा लग रहा था कि जूम पे क्यों नहीं था, हम लोग भी उस पल को उसी तरह से जी लेते उस वक्त। मतलब मैंने उसी वक्त स्क्रॉल करके देखा कि कहीं आया तो नहीं था लिंक, मैंने मिस तो नहीं कर दिया ये वाली चीज। तो मतलब वो वाली चीज है कि विजन दिख रहा है कि नहीं, जाना तो है, तय है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीरियसली इस मतलब दूसरों की खुशी में अगर देखते हैं ना, कभी भी अगर इस बिजनेस के अलावा देखते हैं तो कोई दूसरा आदमी कभी खुश नहीं होता। खाली एक ये बिजनेस है जिसमें अगर हमारा मेंटोर या सामने वाले बंदे की खुशी में सब लोग शामिल होते हैं, तो रियली अमेजिंग लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबी भाभी। हेलो हम हाँ जी, वेलकम संतोष। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल हम भी भैया भाभी के सेलिब्रेशन में गए थे और काफी अच्छा लगा, हमें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था और काफी मोटिवेट हैं, तो काफी अच्छा लगा। मतलब भैया भाभी वहां पर जा रहे हैं और जो भी भैया भाभी ने बताया, और मतलब कितनी खुशी होती है ना देखकर, सब लोग शामिल होते हैं उस चीज में ना। और जैसे मतलब काफी चीजें मतलब लर्निंग भी मिली कल हमें कि भाई कितनी सारी मतलब पॉजिटिविटी, जैसे जो भी मतलब उन्होंने स्टेप उठाया उसको हमेशा मतलब पॉजिटिव उसके साथ किया, तो काफी अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो हाँ, मच। बोर्डिंग होने वाली है और मेरे रहते हैं साथ उस बहुत चीज को। दिग्गज लोग हैं। सीमा, इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ लोगों से और मैसेज दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी 2-3 मोर मिनट्स। हाँ जी भाभी प्लीज। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे गौरी शंकर जी हैं, मॉर्निंग सेशन के अंदर पूरी टीम है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वाओ वाओ, बस मैसेज वेलकम है कि सर। सभी टीम को मिस कर रहे हैं और काम सबको पता है, बस करना है फास्ट और करने यहाँ जब आएंगे तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू गॉड डायमंड। Here is the dynamic leader, most dynamic leader, youngster trio of Rajasthan, India, Vikram. Wow! Welcome all. Super excited. बस अब बहुत ज्यादा यस, इंतजार ना कराएं। Join us soon. और भी अभी यदि हम आगे बढ़े तो हमारी डायमंड लीडर अमृता भाभी हमारे साथ हैं। मॉर्निंग सेशन में लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या मजा आ रहा है? मजा बहुत आ रहा है, पर आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है, सब लोगों को देख रहे हैं कितने मजे कर रहे हैं, सब साथ बैठे हैं। दिन और रात का फर्क मिट गया, हमें पता ही नहीं चला कि हम पूरी रात से यहाँ जागे हुए बैठे हैं। और आप सब लोगों के लिए सीट्स बहुत सारी पीछे पड़ी हुई हैं, जिसमें कि हम सब साथ मिलके बैठेंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और मॉर्निंग सेक्शन यहाँ से कर रहे होंगे अगली बार अपने आगे बढ़े हुए ग्रुप के लिए। लव यू ऑल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, बहुत बहुत मजे आ रहे हैं और हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग ट्रिप होने वाला है और आप लोगों के लिए सब वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे रितिका भाभी भी हैं हमारे। सभी को नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस आपकी कमी महसूस हो रही है, अगला ट्रिप है आपके साथ ले, अपने साथ ले, एंजॉय करें इसी उम्मीद के साथ। गो डायमंड। थैंक यू। ओवर टू होस्ट सीमा। विश यू ऑल गो डायमंड, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, साकेत जी भी 1 मिनट। हियर इज साकेत जी। Hello team. Hello. हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ Good यू। morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है रोहित, लीडर्स। दीपक, रूबी भाभी, सुप्रिया जी, क्या बात है विकास सारे भैया। बहुत बढ़िया। वी आर मिसिंग यू बैडली। और बस अगली बार या उसके अगली बार सब अपने आ सकते हैं, और खास करके जो हमारा ट्रिप नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा जाएगा एथेंस वाले के अंदर, आई थिंक एवरीवन ऑफ यू, चाहे उन्होंने इस साल ज्वाइन किया है चाहे इससे पहले किया है, सब आ सकते हैं। केवल एक जो तिलक जी ने अपने एक ग्रुप पे लिखा था कि मुझे विश्वास है और मैं ये यहाँ पे आने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो करने के लिए तैयार हूं। तो वही वाली बात है और कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारी टीम जो है कर रही है। सो वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गो डायमंड। Go Diamond everyone. Over to Seema. Thank you everyone. Best wishes. बाय। हैप्पी जर्नी सबको। हैप्पी जर्नी टू ऑल मेंटर्स। हैप्पी जर्नी सर। हैप्पी जर्नी ऑल ऑफ यू। हैप्पी जर्नी ऑल ऑफ यू।
और बिल्कुल हमें मिस मत करिए, हम आप लोगों के साथ ही हैं। लुक मैं आपको नजारा दिखा देती हूँ। Here is the scene. एकदम सेलिब्रिटीज की तरह डायमंड मिलते हैं। प्रियंवद जी थे, अनुराग एंड निधि और पैरा स्वामी सांगामेरी, बड़े बड़े डायमंड एकदम साथ में बैठे होते हैं, बहुत मजा आता है। वाओ, प्लीज कैरी ऑन। ग्रेट ग्रेट ऑसम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वहीं पे हैं और एकदम उस पल को जी रहे हैं। तो बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है और बिल्कुल हम मन से आप लोगों के साथ ही हैं और फिजिकली भी बहुत जल्दी जो है वो आप लोगों के साथ होने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिप में। थैंक यू सो मच भाभी, सबसे मिलवाने के लिए, सबका मैसेज दिलवाने के लिए थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आप सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से भैया भाभी ने बोला है और हमारे सारे मेंटर्स ने बोला है, विवेक भैया ने बोला है, अब टाइम है अपने आप को एज्यूम करने का, ब्रांड न्यू फाउंडर ईडीसी, और किस तरह से आप अपने आप को एज्यूम कर रहे हो और पूरी टीम आपकी टीम है और आपसे सुनना चाहती है पॉडकास्ट के बारे में जो आप अपनी टीम को बताने वाले हो, मूवमेंट इज मेडिसिन। तो आज ये वाला फील कौन लेने वाला है? ब्रांड बिल्कुल न्यू मैं फाउंडर लेना ईडीसी। चाहूंगी। हाँ मैं लेना जी, चाहूंगी। वेलकम अरुणा दी। सभी को नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं अरुणा सोनी बीकानेर राजस्थान से आपसे बात कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मूवमेंट पर। हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट के लिए बनी हुई है, स्टिफनेस के लिए नहीं बनी हुई है। यहाँ तक कि लास्ट मोमेंट तक हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए, मतलब अपने शरीर को हम मूवमेंट के लिए तैयार अगर रखते हैं तो लास्ट मोमेंट तक हमारा शरीर हील होने की कोशिश पूरी तरह से करता है। और ये हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से बताया हुआ है कि अपने शरीर को हम कैसे फिट रख सकते हैं मूवमेंट के द्वारा। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, चरक ऋषि थे, उन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मूवमेंट के द्वारा हम कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा सुश्रुत थे जो 6000 साल पहले शल्य चिकित्सा को, मतलब प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे, वो हमारे देश में हुए हैं। और महर्षि वाग्भट हैं जिनका हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा कमांड था कि वो हार्ट से संबंधित कितने ही रोगों को सिर्फ एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा ठीक कर देते थे, औषधियों के द्वारा ठीक कर देते। शल्य चिकित्सा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑपरेशन की। तो इसमें अपने को मूवमेंट के लिए कैसे काम करना है, ये अपने को देखना है कि अपने को सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर अपन कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो अपन पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। हफ्ते में 4 से 6 दिन अपने को करना जरूरी है ताकि हमारी बॉडी मूवमेंट में रहे और हम स्वस्थ रहें। साथ साथ में अपने को ये भी फॉलो करना जरूरी है कि अपन, चाहे अपन सोशल मीडिया पे अभी देख रहे हैं कि टिप ऑफ द मंथ क्या है या सप्ताह का कौन सा अपना मूवमेंट है, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी मूव्स में ना जाएं, बेसिक्स को फॉलो करें ताकि अपने को पूरा रिजल्ट्स मिल सके। और अगर अपन दिन भर में एक बार में अगर 45 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपन उसको बांट दे 15-15 मिनट के 3 शेड्यूल में या 10-10 मिनट के शेड्यूल्स में, ताकि अपन लाभ तो ले सके। एक बार में अगर अपन नहीं भी कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना खुद का रूटीन बताना जा रही हूँ कि मैं दिन भर में, चाहे वो घर के कामों की तरह से हो या बाहर जाने आने की तरीके से हो, दिन भर में कम से कम 5-7 किलोमीटर पैदल चलती हूँ। साथ में डोमेस्टिक जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी अपन उसको इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि अपना बॉडी वर्क, फिजिकल वर्क उसमें हो और उसमें अपन अपने शरीर को मूवमेंट दे पाए और वो पूरे शरीर का मूवमेंट हो। ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ एक ही भाग पर काम कर रहे हैं, नहीं, अपने को पूरे शरीर का मूवमेंट हो, ऐसे काम करने चाहिए। ऐसे घर के कामों को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं अपन। जैसे कि पहले मैंने एक बार अमृता भाभी से सुना था कि वो अपने घर में जब कपड़े सुखाती है तो बाल्टी कपड़ों वाली बहुत दूर रखते हैं और कपड़े सुखाने वाली जो डोरी है उसको बहुत दूर, तो एक एक कपड़े को वो उठा के लेके जाती हैं, वहां तक सुखाते हैं। तो एक तरीके से वो अपना, उनका एक्सरसाइज शेड्यूल भी हो गया और
उसमें उनको अलग से एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें अपने जो भी अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं है कि अपने को जिम जाके ही करना पड़ेगा, नहीं। अपन अगर खुद से कोशिश करते हैं तो अपन घर में बहुत सारे काम कर पाते हैं और वो इजी रहता है। क्योंकि अगर अपन सोचें कि रोजाना एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, अगर वो मिस हो गया तो फिर वो अपना सारा दिन का ही रह जाता है कि आज चलो रहने देते हैं, आज वो टाइम मिस हो गया। तो ऐसी इस वजह से अपने उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेरी टीम से यही रहेगा कहना कि अपने शरीर को मूवमेंट दें और इस मूवमेंट को सिंपल और बेसिक फॉलो करते हुए अपने काम करें, ताकि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सके। आप सब हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरुणा दी। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि किस तरह से हम मूवमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। हमेशा मूवेबल रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार हम अपना टाइम बचा रहे होते हैं कि आज ये काम है, आज सबसे पहला हम अपनी एक्सरसाइज मिस कर रहे होते हैं, है ना। और फिर हम देख रहे होते हैं कि उन कामों में ज्यादा टाइम लग जाता है। और हर एक चीज जो छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं हमारे मेंटर से हमें मिलते हैं, उसमें कहते हैं ना कि ये केवल एमवे बिजनेस के मेंटर नहीं है, लाइफ के मेंटर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने अमृता भाभी का। थैंक यू सो मच अरुणा दी। और अब हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे आगे। जब हम बात कर रहे हैं कि हमें बुक रिवाइज करनी है, और बुक के लिए हमने डिसाइड किया था कि पेज नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे। धन का आपका ब्लूप्रिंट। तो कोई भी शेयर करना चाहे जो भी उन्होंने पढ़ा है, लर्निंग जो भी ली है। मैं बता दूं? हाँ जी, यहाँ पे वेलकम शांति दी। सभी को नमस्कार। धन का ब्लूप्रिंट तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंदर और बाहर अलग अलग है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम जो बाहर से सोच रहे हैं वही अंदर, ऐसा नहीं होता है। जब हम अंदर अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो बाहर आता है। ये ब्लूप्रिंट हमारा बचपन से ही मतलब हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। जैसे कि कई बार पेरेंट्स को देख के हम लोग बोलते हैं अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हर बात पे हम लोग देखते हैं, तो हमारे दिमाग में बड़े होते होते वही ब्लूप्रिंट बन जाता है। फिर हम भी सोचते हैं हाँ पैसा नहीं, चाहे पैसा हमारे पास आता है तो भी कैसे चला जाता है, मतलब कोई मैनेज, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो जिस तरह से बस कहते हैं कि अंदर और बाहर अलग है, जैसा हम अंदर, तो हमको जितना अंदर हम अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे और जितना ध्यान रखेंगे ना, उतना हमारे बाहर चीज हम सफल होते चले जाएंगे। जैसे कई बार पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं, ज्यादा पैसे वाले अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, और ज्यादा पैसा होना होना नहीं चाहिए, उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए हुआ होता है। तो बच्चे किसी के, हम लोगों के दिमाग में यही बैठ जाता है कि हाँ अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, और जो पैसे वाला है वो गलत तरीके से पैसा कमाता है। तो ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि हम गलत सोच, मतलब गलत वाइब्रेशन भी जा रही है हमारी, भाई अमीर लोग अच्छे नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा भी नहीं सोचना है। हम लोगों को ये सोचना है कि नहीं, हर कोई ऐसे पैसा नहीं कमा सकता है, अमीर लोग हर कोई खराब नहीं होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, और हर कोई गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता है। तो हम लोगों को सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, अमीर लोग हो चाहे गरीब लोग, सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। जब तक हम उनके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारे पास भी नहीं आएगा। तो कहते हैं ना, जैसे कि हम ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कहते हैं, मतलब धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं, वैसे हम लोगों को सबकी तरक्की में भी खुश होना चाहिए, अमीर लोगों को देख के खुश होना चाहिए, न कि भी ईर्ष्या रखनी चाहिए। हम ईर्ष्या रखेंगे तो हमारे पास भी धन नहीं आएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब दौलत के लिए हम लोगों को अपने आप को बहुत मतलब सुधारना है। जो ब्लूप्रिंट है उसको हमको हटाना है। जब तक हम ब्लूप्रिंट को सही नहीं करेंगे अपने, तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। तो हम लोगों को अपनी सोच पे विजय पानी है। और हमको अब तक तो जो है, अब इस बिजनेस में ये है कि जादू भी पढ़ा, इतनी चीजें पढ़ी, तो हमको बचपन से भी कई बार हम लोग पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत नहीं सोचो किसी, लेकिन हम लोगों को जैसे नहीं, ये तो बहुत पैसे वाला है, ये जो भी चाहे खरीद सकता है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है, हमको सबके लिए अच्छा सोचना है। तो जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो ये ब्लूप्रिंट को हमको चेंज करने की जरूरत है, तो वो धीरे धीरे ही होगा। और इस आ गए हैं सेशन में, तो हम लोग जरूर चेंज हो रहे हैं और चेंज होते जाएंगे। थैंक यू फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच शांति दी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और डेफिनेटली छोटी छोटी चीजों को जब आप ध्यान से पढ़ोगे और शांत वातावरण में पढ़ोगे, अकेले पढ़ोगे, तो आप छोटे छोटे आपको इंस्टेंस जो है वो याद आएंगे जो बचपन में हुए हैं या पहले कभी पास्ट में आपने फील किए होंगे। और हर एक लाइन पे आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ इस तरह का ब्लूप्रिंट जो है वो मेरे दिमाग में भी बन रहा है और उसको किस तरह से चेंज करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच शांति दी।
हम एक और लीडर से सुन सकते राधे हैं। कृष्णा, राम राम। नमस्कार। हाँ जी, वेलकम सुनैना भाभी। हाँ जी, मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि जैसे अपने को अपन देखते हैं कि पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, एक उदाहरण लेखक ने ये भी दिया है कि पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, अपने को वो फल पसंद नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका परिणाम पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेड़ की जो जड़ है वो किस तरह की है, उसको पूरा नरिश किया गया है या नहीं मिल रहा है उसे नरिशमेंट, तो या अपने जो परिणाम, अपने जो काम कर रहे हैं, हमारी जड़ें हैं जो, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, जो हम डाल रहे हैं फल तो वही आएगा, परिणाम तो वही आएगा। तो हमें ये देखना है कि हमारी जड़ें क्या है। तो जैसे अपन कोई काम करते हैं तो अपन ने ये ठान लिया कि मुझे आज 5 प्लान करने हैं, हम मन से तो बोल रहे हैं कि 5 प्लान करने हैं, लेकिन एक अंदर की आवाज एक आ रही है, क्या हम कर सकते हैं कि हम लोग फोन तो उठाते ही नहीं है कि वो अंतर्मन हमारा क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि ये अपने आप से एक लड़ाई है कि हम इसको, जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वहां तक अपने कैसे अपने विचारों को लेके जाते हैं या फ्रीक्वेंसी को बिठाते हैं। जब हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड में विचार हमारे बैठ जाएंगे सेटिंग, तभी हम इस चीज को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। और एक उदाहरण हमने लेखक ने और दी है कि कंप्यूटर पे अपन ने कोई प्रिंट निकाला, उसमें कोई मिस्टेक रह गई, तो अपन एक प्रिंट निकाला अपन ने, तो वो मिस्टेक अपन ने पेपर पे अपन ने उसको इरेजर से साफ किया और पेन से अपन ने दोबारा लिख दिया, लेकिन दोबारा अपन वो प्रिंट निकालेंगे तो वो मिस्टेक वापिस आएगी। क्यों? क्योंकि जो अपन ने कंप्यूटर में फीड कर रखा है वही तो हमें वापिस प्रिंट होके आ रहा है। अगर अपने पेपर पे दोबारा अपन ने इरेज करके लिख दिया, लेकिन अब अगर तीसरी बार भी उसको प्रिंट करेंगे तो वो मिस्टेक तो अंदर है। तो अपने को अपने अंदर की मिस्टेक ढूंढनी है कि क्या है, अपने अंदर क्या चल रहा है, उसको सही करना है, अपने ब्लूप्रिंट को सही करना है। अपने जो शुरू से लेके फैमिली में अपन ने देखा है, सुना है, पैसे को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो वो चीज जब तक सही नहीं होगी तब तक अपने जो रिजल्ट होंगे वो इसी तरह के रहेंगे। तो ये जब फ्रीक्वेंसी अपनी सही होगी सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, कि अपन जब अंदर से ये फील करने लग जाएंगे कि वाकई ये चीज हो रही है, और वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप में। अपन बोलने से पहले, जैसे अपन ने नेगेटिविटी वीक का अपन ने किया कि नो नेगेटिव अपन ने बोलना ही नहीं है, तो जबान खोलने से पहले एक बार अपने को सोचना पड़ता था, मनन करना पड़ता है कि मेरी जबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये अपने आप को बहुत ही सोच के बोलना, बहुत ज्यादा विचार करके अपने को बोलना, या अपने जो विचार चल रहे हैं उसको करेक्शन करना, यही सारी चीज मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू सो मच सुनैना भाभी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और रियली हम अंदर से जो कहते हैं ना, इरेज कर करके तो पेज को साफ कर रहे हैं कि ये गलत हो गया, इसको सही करना है, लेकिन हम जो मेन मूल जो जड़ों में जो गलती हो रखी है उसको सही करने में शायद अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी वो चीजें, लेकिन हम इस बुक के माध्यम से और अपने लीडर्स ने जो समझाया है, तिलक सर ने जो समझाया है, उसके माध्यम से जो है हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम जो है वो ब्लूप्रिंट में अपना जो है वो करेक्शन करें। थैंक यू। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, कितने पेजेस तक आपने कवर करा है? सुनैना भाभी, कितने हाँ जी, पेजेस हाँ तक जी, आपने? मैंने ये वाला किया है। इसमें आज धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और ये कैसे बनता है ना, ये चीज ले लीजिए। इसमें एक कंप्यूटर वाला शायद इसके आगे का है। हाँ, इसमें मेरे पास पेज नंबर नहीं है क्योंकि मेरी बुक जो है किसी के पास सीधा वो बुक पे लिखे ही नहीं अंदर पेज में। आई थिंक हमने 32 तक शायद हमने करा है ना? हाँ ये जो जी, हाँ जी। परिवर्तन है, परिवर्तन के कदम जो है वो हमें जो है वो पढ़ने हैं। तो परिवर्तन के कदम से हम वापस पढ़ेंगे, सब लोग साथ साथ में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो और उसके बारे में डिस्कस होता है ना, तो जो है वो और अंदर गहराइयों में चली जाती है हमारे दिमाग में, और फिर हम उसके जो है वो एप्लीकेबल कर पाते हैं, वो एप्लीकेबल होता है, हम अप्लाई कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो सब लोग साथ में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, और डेफिनेटली हम आप सबको सुनना चाहते हैं। तो हम आगे चलेंगे जिसमें शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू कर सकते हैं ना, 30 पेज से। हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ, वहां शाब्दिक से स्टार्ट कर लीजिए, है ना। ठीक है।
4 से 5 पेज तो रोज कवर कर पाए इसको ना। अगर पढ़े भी होंगे तो अपने को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, अगर पढ़ा हुआ नहीं होता है तो वो बात ऊपर से ही निकल जाएगी, समझ में ही नहीं आएगी। बिल्कुल। कुछ लोग तो जैसे फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ना अभी। तो साथ में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। और अब हम बात करेंगे फटाफट से, 1-2 लोगों से हम सुन पाएंगे आज का फोकस क्या है, फोकस शेयरिंग। इसमें सीमा जी एक डिक्लेरेशन वाला आप दोबारा दीजिए ना पढ़ने के लिए। घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य, जैसे ये वाला टॉपिक अपना अभी कवर नहीं हुआ है, घोषणा और वो तो एफर्मेशन। अभी आएगा ना, वो आएगा ना दीदी। अभी आपने आज क्या दिया है पढ़ने के लिए? अभी शाब्दिक प्रोग्राम पहला प्रभाव। पहला प्रभाव शांति दी ने बताया है, शाब्दिक प्रोग्रामिंग ना। तो ये अभी आएगा आगे जो आप बोल रहे हो ना, डिक्लेरेशन नहीं वाला। नहीं 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 नहीं, पहले आता है शाब्दिक प्रोग्रामिंग से पहले है परिवर्तन का घोषणा शक्तिशाली एफर्मेशन। रहस्य है। पेज नंबर 25 पे है घोषणाएं हम्म। परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। हाँ, पेज नंबर 25 ये से, सही वाला कह रहे हैं। टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो अपने को ये चीज जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो माइंड उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। हाँ, तो 25 से पेज नंबर परिवर्तन। ठीक है, तो 10 पेज सब लोग पढ़ के आएंगे, पेज नंबर 25 से पेज नंबर 35, है ना। और अब हम बात करेंगे फोकस शेयरिंग की। जल्दी से एक लीडर जो है वो फोकस शेयर करे, आज का क्या फोकस है आज का जी दीदी, मैं फोकस। बताना चाहूंगा। हाँ जी, वेलकम दीपक भैया। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो जैसे अपना बुक रीडिंग क्लब अभी जस्ट समाप्त होने के बाद मैं अपना ऑडियो सुनता हूँ, और ऑडियो सुनने के बाद हम लोग मैं और पिंकी अपने जो पूरा बिजनेस का है, किसके साथ में क्या एक्टिविटी है, क्या प्लानिंग है, वो करते हैं। उसके बाद आज 4:30 बजे जो है लेडीज मीट होने वाली है, तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को बुलाएंगे और अपने रिटेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ओवर टू यू। ग्रेट। दीदी, इसमें जो मुंबई क्लस्टर ट्रेनिंग के ऊपर एक वो है नींव फाउंडेशन, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारी टीम में नए ज्वाइन करें 10 दिसंबर फ्राइडे 5 बजे उनके लिए प्रोग्राम रख रहे हैं एमवे नींव प्रोग्राम। बहुत जरूरी प्रोग्राम है, बहुत न्यू एडीआर एडीएस के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सब लोग ज्वाइन करें। 10 दिसंबर को होने वाला है शाम को 5 बजे। और बहुत अच्छा याद दिलाया दीपक भैया ने, जो कह रहे हैं कि आज जो है वो 4:30 बजे लेडीज के लिए एसटीपी होने वाला है। सब लोग अपने होम मेकर और लेडीज जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं आज के सेशन में। और अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेयर की तरफ। प्रेयर कौन करवाना चाहेगा आज हमें? जल्दी से आप बताएं कि कौन करवाना चाहेगा आज, ये अपॉर्चुनिटी कौन लेना आज चाहेगा? आप ही करा लीजिए सुबह जी। तो ठीक है, मैं कराती हूँ फिर। तो सब लोग जो है वो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और हाथ जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक शांत आत्मा हूँ। मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं परमपिता परमेश्वर का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार, मेरे प्रियजन सुखी व समृद्ध हैं। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है। थैंक यू गॉड, इतने अच्छे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, मेरा महामस्तिष्क में सारे सवालों के जवाब हैं। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस के लिए। थैंक यू गॉड, मेरी टीम 9 कोर स्टेप फॉलो करती है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम
एक्साइटेड है, प्रॉफिटेबल है। थैंक यू गॉड, मैं रोज बुक पढ़ती हूँ, रोज पॉडकास्ट सुनती हूँ और मैं रोज डिक्लेरेशन करती हूँ, एफर्मेशंस करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं अपने टीम में 100 कपल्स के साथ ALS ट्रिप क्वालिफाई कर रही हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Thank you so much, thank you to all। और अब बिल्कुल टाइम है सबके प्यारे खूबसूरत चेहरों को एक क्लिक में कैप्चर करने का, सारे डायमंड्स को एक फ्रेम में कैप्चर करने का। और बिल्कुल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग जो है वो अपना कैमरा ऑन करें। जस्ट वेटिंग, स्टिल वेटिंग। अगर बहुत सारे कैमरा अभी ऑफ है, कैमरा ऑन हो पाए तो काउंटिंग 1 2 and 3। Thank you everyone, thank you so much। Go diamond all। Thank Go you। bye everyone। Bye. And thank you so much।